Hello, dear students. First of all, many congratulations to all of you. You all are the newcomers at our MBBS 2021 batch. So, yes, very excited. And I think you all have faced your foundation course at the college या फिर आपके कॉलेजेस में फाउंडेशन कोर्स रन कर रहे होंगे. Okay, but now also we have taken one session yesterday. You can get that video at our YouTube channel. There you can get what you are going to face in your medical college in brief, and how to deal with the anatomy, physiology, and the biochemistry. Okay, so just with little introduction about me, we are going to start our today's session. First class of the anatomy and the dissection. Yes, dear students, myself Dr. Shrikant Verma, MBBS MD Anatomy. I am working as associate professor at my anatomy department, RIMS Medical College. And yes, I have taken many classes inside the India and outside the India. You can see this all the real pics of my classes. And I am also the guest faculty at the international level. I have taken the classes at the Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and also due to this lockdown period, also I have taken the classes at the Armenia. Okay, so due to this lockdown period, we came from this offline classes to the online our media, and again at the online platform, all the students from all over India and abroad, they connected with us, and during the lockdown period they got many benefits. There is the excellent kind of the feedback that, sir, we just watched your videos, we just attended your classes and revised the e-notes, and we sit for the exam. All the things came in the brain like the movie, and we written the exams, and all the students are doing top at their colleges and university. Yes, FMC Medical College Pune students, their topper is from our platform. Yes, Katak Medical College, our BJMC Medical College, our different colleges, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, even the Rajasthan, South Hyderabad, Bangalore, Chennai, this all the students are connected us with us, and they are doing top. So this is really gives immense pleasure for our online classes also. जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन पीरियड हटेगा, हम फिर से ऑफलाइन क्लासेस के फॉर्म में आपके पास लाइव आएंगे. ओके, सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास फॉर द एनाटॉमी. यस, सी हियर. सबसे पहले बेटा समझने की कोशिश करना कि ये एनाटॉमी हमारे लिए क्यों जरूरी है, एंड व्हाई वी आर मीटिंग फॉर द क्लासेस. सर, कॉलेजेस में तो पढ़ाई होती है, शेड्यूल भी वहां टाइट रहता है, फिर हमें अलग से क्लास करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप में से बेटा अक्सर मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा, सर मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं, सर मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूं, सर मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं, सर मैं ओंको सर्जन बनना चाहता हूं, सच काइंड ऑफ द थिंग. लेकिन कभी भी बेटा ये आंसर नहीं बनेगा कि सर मैं एक टीचर बनना चाहता हूं जो डॉक्टर्स को टीच करना चाहता है. या फिर अगर आपके अंदर ये तमन्ना होगी भी, तो आगे चल करके जब आप डॉक्टर फील्ड में जाएंगे तो पूरी तरीके से हम क्लिनिकल फील्ड के लिए ओरिएंटेड हो जाते हैं. सो रिमेंबर, इन our medical colleges, the doctors are busy to treat the patient, to serve the patient, to run the medical college. So among the 10 teachers, you will get 2 or 3 teachers who will teach excellently. Okay, yes, आई एम नॉट सेइंग दैट गुड टीचर विल बी नॉट देयर. बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे बेटा आपको, मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, लेकिन उनके नंबर्स कम रहेंगे, क्योंकि ये जो टीचर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट को रन करने में बहुत बिजी होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कॉलेज को प्रॉपर रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके बिना कॉलेज रन नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट रन नहीं कर सकता. लेकिन इस बीच में आपको टॉपिक्स को समझना होता है, क्या पढ़ाया गया वो समझना होता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है. और याद रखेंगे, कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम की तरह स्पून फीडिंग नहीं होती. गेटिंग द पॉइंट? आपको खुद से मेहनत करनी है. और याद रखेंगे कि बुक मैटर नहीं करता, टीचर मैटर नहीं करता, मैटर करता आपकी खुद की स्टडी, आपकी खुद के नोट्स. Even when you will attach with my platform, I will say you that self study is best study. तो सबसे पहली चीज है कि आपको खुद की स्टडी करनी है. अगर कहीं पर कोई कमी लगती है, आपको लगता है कि नहीं हमको सर के साथ जुड़ना चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम है.
Getting the point, beta? Yes. Now, what I want to tell you that always you will see that inside our medical field, you will get the anatomy as your first subject, as well as it will be most difficult subject among all the 19 subject. Why sir? Why? See here, अगर मैं आपसे ए बी सी डी पूछूं, आप आसानी से बता लेंगे, लेकिन आपको याद है इसको सीखने में ही आपको बहुत टाइम लगा था, एक एक साल दो दो साल अपने को बचपने में देनी पड़ी थी। और अगर मैं आपको पूछूं कि बी जो है ए के बाद क्यों आता है, या फिर डी के पहले से क्यों सी क्यों आता है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। यही लॉजिक एनाटॉमी में भी है। एक आर्टरी है, वो आर्म में रन कर रही है। गेटिंग द पॉइंट? यस, हमारे आर्म में एक आर्टरी रन कर रही है, वो किसी नर्व के मीडियली है। क्यों मीडियली है तो है, यहां कोई कॉन्सेप्ट रन नहीं करता। कहने का मतलब एनाटॉमी सब्जेक्ट में आपको रटने की जरूरत पड़ती है, और जहां पर रटने की जरूरत पड़ती है वहां पर चीजें, यस, दिस इज द फीडबैक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यस, दैट एनाटॉमी is very dry, it is very hard, it is very boring, it is very volatile subject। यानी कि अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो सिर्फ 2 दिन क्या, 2 घंटे में ही हम इस सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। एंड all the students have given very good feedback that our classes, it turns the anatomy, not only the anatomy but all the subjects, medicine, surgery, patho, pharma, whatever the subject you will get at this platform, they all will get converted into the very interesting. Okay, yes, you will get very much fun, you will get very much concepts, you will get very much flow charts, so that you can create the topic easy, you will get many diagrams, ओके, टू मेक द सब्जेक्ट वेरी सिंपल। तो बच्चों ने बेटा बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया हुआ है कि जितने भी सब्जेक्ट जो हम यहाँ पर रन करते हैं वो आइसक्रीम की तरह पिघले हुए, टेस्टी भी लगते हैं और खाने में मजा भी आता है। इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस एनाटॉमी विच इज ड्राई, हार्ड, बोरिंग एंड द वोलेटाइल सब्जेक्ट इनटू द वेरी सिंपल फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to look what is the anatomy. We have seen the many our things right now. In the previous our video we have seen the different things how to deal our first year anatomy, but right now we are focusing over the proper way of the anatomy. So this is our first class. So what I want to tell you beta, yes, see here, anatomy and dissection both are very parallel. Okay, yes, see here, what is the verbal meaning of the anatomy? See here, first we have to understand what is the anatomy, and I told you ana plus tommy. Ana means to see, tommy means beta cutting. Okay, means you have to cut and you have to observe, means we have to do, yes, we have to cut and we have to do proper observation. This is known as dissection. Yes, this is known as dissection. Now we are the field, we are at the field of the human medical science. That's why we are going to do the human body dissection. I told this all the things in our introductory part also, but right now again I am repeating. Why? क्योंकि बेटा एनाटॉमी की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए ये जो डाइसेक्शन है वो एनाटॉमी ही है, एनाटॉमी ही डाइसेक्शन है, डाइसेक्शन ही एनाटॉमी है। गेटिंग द पॉइंट? सो इट वाज वेरी ओल्ड एरा। लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि जब भी किसी की डेथ होती थी तो लगता था कि बॉडी के अंदर क्या चीजें हैं। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स होते थे वो राजाओं के पास जाते थे, किंग्स के पास जाते थे, पोप पादरियों के पास जाते थे, उनसे परमिशन लेते थे और फिर बॉडी का डाइसेक्शन किया जाता था। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द एनाटॉमी विच आई विल टीच यू इन अपकमिंग क्लासेस। और उसके बाद ग्रुप बना करके डाइसेक्शन किया जाता था, अंदर की चीजों को देखा जाता था। तब धीरे धीरे मेडिकल साइंस इंप्रूव होता गया। रिमेंबर द फादर ऑफ द मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, नो डाउट। Yes, Aristotle, Socrates, they also played too many roles for the development of the medical science, no doubt. लेकिन
ये मेडिकल साइंस पूरी बॉडी के बाहर बाहर चल रही थी। फिर उसके बाद हीरो ऑफ द एनाटमी आया। आई विल टीच यू इन द हिस्ट्री ऑफ द एनाटमी। हीरो ऑफ एनाटमी आया हीरोफिलस। Herophilus is father of anatomy. Yes, I will teach you this. All are the your MCQs also for our NEET exams, different kind of the exams, our INICET exams, AIMS, PGI, JIPMER, this all kind of the exams. Okay, तो वहां ये क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एनाटमी, फादर ऑफ मेडिसिन. सो वी हैव टू नो हीरोफिलस, सेपरेट चैप्टर, सेपरेट क्लास, 2 क्लासेस आई विल टेक यू फॉर द हिस्ट्री ऑफ द एनाटमी, जहां पर लियोनार्डो द विंची से भी हम मुलाकात करेंगे, जो कि दुनिया के सबसे फेमस पेंटर हैं, मोनालिसा की पेंटिंग के लिए बहुत चर्चित हैं. बट रिमेंबर ही वाज एक्सीलेंट एनाटॉमिस्ट आल्सो. आई विल शो यू द इमेजेस. So what I want to tell you, the Leonardo da Vinci is considered as father of cross sectional anatomy. कहने का मतलब जब एनाटॉमी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हमने लीवर को निकाल करके हाथ में देखा, तब समझ में आया कि हेपेटाइटिस में लीवर में क्या प्रॉब्लम आती है. जब हमने ब्रेन को काट करके हाथ में निकाला, ब्रेन को देखा, ब्रेन को समझा, तब समझ में आया कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, ब्रेन डेथ वाली चीजें क्या होती हैं. So for this all the things dissection was very very essential. तो जैसे जैसे डाइसेक्शन का इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे जैसे एनाटॉमी का इंप्रूवमेंट हुआ, वैसे वैसे हर ऑर्गन की बीमारी पता चली, बीमारी पता चली तब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाया. Are you getting the point, beta? Okay. Hope you all are getting the point. And any kind of the doubt will be there at the last time of the our class. We will do live discussion. हर क्लास के आखिरी में बेटा हमारे 10 मिनट 15 मिनट टोटल लाइव डिस्कशन के होंगे, जिसमें आप क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछेंगे. ओके, नाउ try to understand. Yes sir, anatomy means dissection, dissection means anatomy. So I'm going to tell you the general principle of the anatomy. See here, yes, you all will do such kind of the dissection in your dissection hall. Okay, you will get the opportunity. हाँ, ये बात अलग है कि आपके डिपार्टमेंट में बॉडीज कितनी अवेलेबल हैं, आपके टेबल में कितने स्टूडेंट्स हैं. सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट रोटेशन. सो यू विल डू द प्रॉपर डाइसेक्शन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. यस, this anatomy, this dissection, see here, dissection is a Latin equivalent of the Greek word anatom. Anatom, again ana plus tom. Ana means to see, tom means cutting. So it is meaning of the cut up. Dissection means to cut apart and see. काटो और देखो. Are you getting the point? Simple. काटो और देखो, that is our anatomy. And dissection means to separate and clean the structure. ऐसा नहीं कि सिर्फ कट कर देना है, आपको कट भी करना है और चीजों को साफ करके देखना है. यस, वेरी ब्यूटीफुल डाइसेक्शन यू ऑल विल डू. ओके, तो हम पैर का, हाथ का, ब्रेन का एक एक चीज को ओपन करके देखेंगे. और सबसे मजा तब आता है जब हम क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं. कैन यू सी हियर बेटा? यस, व्हेन वी विल स्टडी, we will look the 3D model also. We will look the Dr. B.D. Chaurasia sir book. We will look the Gray's Anatomy. We will look the Natter's Theme Anatomy, all the things. So we will do the proper dissection. Yes, layer by layer dissection. We will cut the body and then all the layers will be open. We will study the each and every muscle. एब्डोमेन की मसल मैं आपको शो कर रहा हूं. हम इसके देखेंगे कि ये कहां से निकलती है, कहां खत्म होती है. जहां से निकलती है उसे कहते हैं ओरिजिन, जहां खत्म होती है उसे कहते हैं इंसर्शन. हर मसल को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई नर्व, और जब ये मसल कांटेक्ट करती है तो कोई ना कोई मूवमेंट होता है. तो इस तरीके से हर मसल को हमको 4 हेडिंग में पढ़ना होता है. Yes, we will see the different kind of the structure. Every muscle we will study under the heading of the origin, under the heading of the insertion, under the heading of the our yes nerve supply, अंडर द हेडिंग ऑफ द आवर एक्शन. और बहुत ही खूबसूरती के साथ हम हर चीज में कोई ना कोई गाने, कोई ना कोई कविता बनाते हुए चलेंगे. यस, रिमेंबर, नेवर फॉरगेट, every muscle is having the 4 important fact which we will say the oina. Yes, एक गाना बना लेंगे, oina 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 oina, anything kind, any kind of the trick you have to remember. What is the trick beta? OINA, origin, insertion, nerve supply, action. I will teach you this all the point later. हर चीज को बेटा हम डायग्राम बनाते हुए चलेंगे. सी हियर, कैन यू सी, दिस इज द मसल, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी.
जब हम डाइसेक्शन करेंगे तो कोई भी मसल में आपको दो चीजें नजर आएंगी, एंड द कलर कोडिंग इज इंपॉर्टेंट. आई विल टेक सेपरेट क्लास फॉर द कलर कोडिंग फॉर यू ऑल, ताकि आप एनाटॉमी को सिर्फ इमेजेस देखें और समझ जाएं. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, every muscle, yes, what is the muscle beta, you know all, you have seen in your school time. Muscle means contractile tissue in easy way. Okay sir, जो भी स्पेशल टिश्यू है जिसमें कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जो सिकुड़ता है, वो मसल होता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैविंग द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी. यू ऑल नो, आप पढ़ करके आए बेटा, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के कारण. Okay sir, now try to understand, this muscle is having the appearance like the mouse. Can you see one funny way to remember the fact? ये देखो बेटा, ये चूहे जैसा दिख रहा है. हम जब छोटे थे बचपन में तो हम चूहे बनाया करते थे. तो आपका जनरल एनाटॉमी का बुक ही कहता है कि मसल टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मसल टर्म इज डिराइव्ड बाय द माउस. Yes, mouse means muscle, muscle means mouse, because the muscle is having mouse-like appearance. This all are the part of the general anatomy. और general anatomy जब तक weak रहेगी बेटा, आपका anatomy weak रहेगा. Yes, general anatomy is boring. General physiology is boring. जनरल बायोकेमिस्ट्री, जनरल फार्मेकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑल आर बोरिंग. जब सिस्टेमिक पार्ट आएगा, जब ब्रेन को ओपन करेंगे, जब हार्ट को ओपन करेंगे, बहुत मजा आता है. लेकिन याद रखेंगे कि जब तक आपकी एबीसीडी वीक है, तब तक आप हैरी पॉटर का नॉवेल नहीं पढ़ सकते, आप चेतन भगत के नॉवेल नहीं पढ़ सकते, आप कोई भी चीज नहीं पढ़ सकते. इसी तरीके से दिस एबीसीडी इज इक्विवेलेंट टू द एनाटॉमी. यस, एनाटॉमी इज एबीसीडी ऑफ द मेडिकल साइंस. एंड इफ योर एबीसीडी इज वीक, इफ योर एनाटॉमी इज वीक, definitely you cannot deal properly with the your, yes, remember, with any medical science. Getting the point beta? Okay, now try to understand, we are going to look for the our other things. Yes. Sorry, see here beta, any muscle is having the two ends. What are the two ends? Yes, see here beta, any muscle is having the two ends. Okay sir, one is known as origin and another is known as insertion. Okay sir, we will look. Can you see, like the mouse, it is having the fleshy part. Okay sir, and another is cord like part. Getting the point? हर मसल में दो चीजें होती, एक फ्लैशी है जो दब जाता है, दूसरा कॉर्ड लाइक पार्ट है जो नहीं दबता. यस, दिस फ्लैशी पार्ट इज नॉन contractile part. Okay sir, while this cord like part is contractile part. Getting the point? Okay sir, fine. This fleshy part, non contractile part, is known as belly, while this cord like part, okay, sorry, kindly improve this one, the fleshy part is your contractile part. फ्लैशी पार्ट में बेटा कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसे हम बेली कहते हैं. जबकि जो कॉर्ड लाइक पार्ट है ये कॉन्ट्रेक्शन शो नहीं करता. काइंडली इंप्रूव दिस वन, ये कॉन्ट्रेक्शन शो नहीं करता, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज टेंडन. सो दिस इज नोन एज टेंडन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू. सी हियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपने देखा कि यस, बेली क्या होता है और टेंडन क्या होता है. द कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल इज नोन एज बेली. आप अपने बाइसेप्स को फील कीजिए, ये दब रहा है. यस, दिस इज योर बेली. अपने हाथ को देखिए, यहाँ पर कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. कैन यू प्रेस दिस वन? बहुत अच्छे से प्रेस नहीं हो पाते. दीज आर नॉट द बोन, दीज आर आवर टेंडन. गेटिंग द पॉइंट बेटा? सो the contractile part of the muscle is known as belly, while the non-contractile part of the muscle is known as tendon. Getting the point? Now try to understand, each muscle is having the two end. One end, yes, here is the first end and here is the second end. Getting the point? तो एक एंड जो कि मूवमेंट के टाइम फिक्स होता है, द फिक्स एंड, दैट इज नोन एज ओरिजिन. जबकि दूसरा एंड जहां पर ज्यादा मूवमेंट होता है, यस, विच इज मूवेबल, दैट इज नोन एज इंसर्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर हमारा मसल है, आर यू गेटिंग? बाइसेप्स मसल.
तो जब हम बाइसेप्स में मूवमेंट कर रहे हैं, कैन यू सी हियर दिस मूवमेंट, कहाँ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, इधर ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, इस तरफ नीचे, इधर कम मूवमेंट हो रहा है, शोल्डर में कम मूवमेंट हो रहा है। तो बाइसेप्स का जो भी पार्ट शोल्डर की तरफ होगा, यस, दैट विल बी द आवर ओरिजिन, जबकि इधर मूवमेंट ज्यादा है तो इधर जो भी पार्ट होगा दैट विल बी नोन एज इंसर्शन। गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? ओके, सो व्हाट वी वांट टू know that every muscle is having the two ends. I am showing you the biceps muscle. Yes. See here beta, this is our upper limb. Can you see this muscle? Yes sir, we are able to look at this muscle. Now try to understand, this muscle is having the two parts, one and second. At the upper part it is having the two ends. Okay sir. And at the lower part, can you see here, at the lower part again you can see there are the two parts. You know that this particular bone at the arm is humerus. Hope you all are aware with this basic things. Yes, see here, there are the other bones. This particular bone is known as radius. Here is the one another bone that is known as ulna. Getting the point beta? Okay, now what I want to tell you, this particular muscle is having the two heads. So these two heads are known as bi means two. It is having the two head जहां से ये शुरू हो रहा है, हेड को लैटिन वर्ड में, ग्रीक वर्ड में बेटा क्या कहते हैं, सेप्स, सिफेलिक मींस हेड। तो इस मसल के पास दो हेड हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइसेप्स। अब अगर ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सी हियर, तो ये मूवमेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पर बेटा ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, शोल्डर के पास ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, बट कैन यू सी दिस पार्ट इज मोर मोबाइल। जहां मूवमेंट कम होता है उसे ओरिजिन कहते हैं, जहां मूवमेंट ज्यादा होता है उसे इंसर्शन कहते हैं। और भी कई सारे फैक्ट हैं, वी विल सी दिस, ऑल द टर्मिनोलॉजीज आर इंटरचेंजेबल, लेकिन इसे हम बाद में मसल वाले पार्ट में लर्न करेंगे। बट राइट नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, देयर आर द टू एंड्स ऑफ द मसल, फर्स्ट एंड ओरिजिन, अनदर एंड इज इंसर्शन। जो फिक्स होता है वो ओरिजिन कहलाता है, जबकि ऐसा एंड मसल का जो ज्यादा मूवमेंट शो करता है इंसर्शन कहलाता है। सो इन दिस वे वी विल लर्न ईच एंड एवरी पार्ट। बट राइट नाउ सी हियर, वी आर डूइंग द डाइसेक्शन। यस बेटा, ये आदमी का डेड बॉडी का हैंड है, आपने यहां पर कटिंग किया, कटिंग करके स्किन को ओपन किया। अब अंदर की जितने भी नस हैं, लोकल लैंग्वेज में हम नस कहते हैं, बट इन एनाटॉमी, इन मेडिकल साइंस यू विल से नर्व, आर्टरी, वेसल्स. So this all the things we will do at the dissection hall, and then we are cutting the hand. Can you see? These are the fingers. So in anatomy we will cut the hand and we will see this all the structure. You can feel this all the things. हाथ को छुइए और यहाँ पर टच कीजिए, आपको कुछ कड़े कड़े से स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होंगे. This all are the same thing. This all the nerves, arteries, vessels, they are passing and they are reaching in the hand. Okay, we will see the animated forms to look properly. Can you see here beta? See here, with the very interesting manner, with the, all the 3D orientation, we will see this structure like the cord like. Yes, we will make the dissection layer by layer. तो हम यहाँ जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर बेटा हम dissection करेंगे, एक एक चीज को layer by layer हटाएंगे. Yes, we will do all the things layer by layer. फिर अगली मसल को हम हटाएंगे, फिर उसके बाद अंदर की चीज को देखेंगे. Okay, so in this way we will do all the things layer by layer. So now I am going to tell you the basic principle of the dissection. क्यों बेटा, क्यों ये जरूरी है? क्योंकि dissection is the anatomy, anatomy means dissection. Okay, that's why we have to know. लेकिन उसके पहले आपके कॉलेज में भी बेटा कैडेवरिक ओथ हुई होगी, इस चीज को याद रखने हैं. Yes, cadaver is the thing who teaches us. एक मुर्दा जो है वो जिंदा लोगों को सिखाता है. सो वी हैव टू डू प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द कैडेवर. Getting the point? Medicine line is one where dead teach living. Yes, it is the one statement from the various sources of the note, but better to say not the medicine, medicine is also, but better to say beta anatomy.
बेटा एनाटॉमी वो जगह है जहां पर एक मुर्दा जो है वो जिंदा लोगों को सिखाता है. सो दिस इज द वेरी वेरी फेमस डायलॉग इन ईच एंड एवरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट, in forensic medicine department, because here you have to do the dissection. और वो जो कैडेवर है वो हमको सिखाता है कि ब्रेन कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, आइस कैसे होते हैं, बोन्स कैसे होते हैं, आर्टरीज नर्व्स कैसे होते हैं. उनको सीख करके हम बीमारियों को समझते हैं और बीमारियों को समझ करके फिर हम इलाज कर पाते हैं. सो कैडेवर इज गॉड फॉर अस, कैडेवर इज टीचर फॉर अस, कैडेवर इज द फर्स्ट टीचर फॉर ऑल वी स्टूडेंट. Getting the point beta? So we have to do proper respect to the cadaver. Yes, cadaver beta क्या होता है? The human dead body which is preserved, and this technique is very old. Can you see? This is the very old technique since the era of the our Mishra pyramid. Getting the point? Okay. तो उस समय मम्मी बना करके डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था. सो कैडेवर इज नथिंग, प्रिजर्व्ड डेड बॉडी which are permitted from the government to do the proper dissection for the study of the MBBS students. Getting the point बेटा? तो हमें इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है. यस, हमको कैडेवर की केयर करनी है, कैडेवर को प्रॉपर हमें ख्याल रखना है एंड प्रॉपर उसे मेंटेन करके रखा जाता है, ढक करके रखा जाता है, फॉर्मेलिन के टैंक में रखा जाता है. यू विल सी एट द एनाटॉमी डिपार्टमेंट उनकी टैगिंग की जाती है और उनके लिए अलग से चैम्बर होते हैं so that we can learn better and better way. Okay, and yes, this is the very very best place for all of us. So just see, you can look behind, there will be the dissection hall in your college. वहां पर अलग अलग डाइसेक्शन टेबल अलॉटेड होंगे और इसके किनारे में बेटा बेंचेस लगे होंगे. यू ऑल विल गेट अलॉटेड टू द योर रिस्पेक्टेड टेबल्स. वहां पर आपके सीट अलॉट होंगे, आपके टीचर अलॉट होंगे और आपको डाइसेक्शन करने के लिए कहा जाएगा एंड टीचर विल हेल्प यू. गेटिंग द पॉइंट? यस. पहले दिन बेटा डर लगेगा, थोड़ा सा वोमिटिंग सेंसेशन लग सकता है, लेकिन एक दो एक्सपोजर की बस जरूरत होती है, उसके बाद ये सारी चीजें नॉर्मल लगती है. और एक चीज याद रखेंगे कि एनाटॉमी के टीचर जो होते हैं वो आपको स्ट्रिक्ट मिलेंगे. जनरली हमारे जो एनाटॉमी के टीचर थे बहुत स्ट्रिक्ट थे. ओके, पुराने जो समय के टीचर थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. अभी भी कंपैरेटिवली फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी के टीचर आपको स्ट्रिक्ट ही मिलेंगे. ओके, तो उनके स्ट्रिक्टनेस के सामने ये कैडेवर जो होता है वो कुछ नहीं लगता. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू विल एंजॉय दिस डाइसेक्शन हॉल, यू विल लर्न टू मच थिंग्स एंड यू विल होल्ड द ब्रेन, यू विल होल्ड द हार्ट. और ये आपका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, आपकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम होगा जो कभी नहीं आएगा. इस फर्स्ट ईयर के बाद आप कभी भी ब्रेन को, हार्ट को, लंग को हाथ में नहीं रख पाएंगे. अगर आप पर्टिकुलर वो ब्रांच उठाते हैं पीजी प्रिपरेशन में, तभी उस पर्टिकुलर ब्रांच की चीजों को टच कर पाएंगे. अदरवाइज दिस फर्स्ट ईयर इज वेरी यूनिक. सो एंजॉय इट, learn from the first year. Okay, and you will see the formalin is used for the preservation of the different dead body. Okay, so what I want to tell you, okay sir, we are getting interest for the dissection, so I am going to tell you the basic rule of the dissection. Hope you all are getting the point what you are going to do at your anatomy department. So I am going to say about the dissection. So try to understand. हम कट करते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल बनाते हैं, एक रूल बनाते हैं, और ये रूल बन जाएगा तो वही हमारे लिए ट्रिक निमोनिक का भी काम करेगा. पूरे एक साल की एनाटॉमी मैं आपको अभी कुछ मिनटों में कंसाइज करके दे रहा हूं. इस रूल को बेटा आपको याद रखना ही है. गेटिंग द पॉइंट? यस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम आर्म को कट कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम आर्म को यहां से कट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आर्म कैसा है. सर आर्म इज राउंडेड, गोल है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज एनी पर्सन. ओके सर, यस, सपोज दिस इज एनी पर्सन. ओके, just one cartoon so that you can get the point. So we will read the upper limb, lower limb, thorax, this all the different parts. So try to understand. Yes, see here, we are going to do the dissection at this level. हमने आर्म को कट किया. कैसा कट किया बेटा? ट्रांसवर्सली कट किया. The plane which is parallel to the ground, that is the transverse section. I will teach you बेटा. Okay,
देयर इज द मिड सजाइटल सेक्शन, जिसमें हम बॉडी को मिडिल लाइन से कट करते हैं, विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ, दैट इज आवर मिड सजाइटल सेक्शन. द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट, जो आगे और पीछे में डिवाइड करता है, उसको हम कोरोनल प्लेन कहते हैं. द प्लेन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसा प्लेन, ऐसा कट सेक्शन जो जमीन के समानांतर हो, जो जमीन के पैरेलल हो, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स सेक्शन. सपोज आपने कैडेवर का आर्म यहां से कट किया, सो हाउ इट विल अपीयर, यस, आर्म जो है आप अपने बॉडी में फील कीजिए. हम जब क्लासेस लेंगे तो एनाटॉमी को मैं आपकी बॉडी में बताऊंगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, व्हेन वी आर कटिंग एट दैट सिचुएशन, the arm will be felt as rounded structure, so you will get the structure of the arm in such kind of the way. Okay sir, arm you will see rounded in layer. Getting the point? Okay, yes, suppose this is our rounded arm. Getting the point beta? Okay, yes. सबसे बाहर वाला लेयर आपको क्या दिख रहा है? आप खुद देखो बेटा, रटना नहीं है. यस सर, स्किन दिख रहा है. Now try to understand, just below the skin there is the condensation of the our body fat. आपको पता है हमारे बॉडी में खूब ज्यादा फैट होती है, तो जैसे ही आप कट करेंगे तो स्किन के ठीक नीचे फैट का येलो येलो लेयर आपको मिलेगा. सो दिस इज आवर फैट. सो मेकिंग द प्रॉपर लेबलिंग ऑल्सो. और बेटा एनाटॉमी में डायग्राम बनाना पड़ता है. रिमेंबर, जब आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है. सो यू हैव टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ द हैंडमेड डायग्राम. तो हम पूरे क्लास में हाथों से डायग्राम बनाएंगे, जिसे देख करके आप सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब वो आंसर शीट में लिखेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे. और मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं कि एमबीबीएस में 50% जो है वो पासिंग मार्क है, 33% नहीं है. सो जस्ट बिलो द स्किन यू आर गेटिंग द sorry, layer of the fat. This layer of the fat, sorry, this layer of the fat is known as fascia. Are you getting the point? This is known as fascia. तो पूरे एनाटॉमी में बार बार एक वर्ड आएगा, fascia. What is the fascia? Fascia is nothing, this is layer of the fat. लेकिन इसके दो पार्ट है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है. ऊपर वाले पार्ट में फैट ज्यादा होता है, जबकि नीचे वाले पार्ट में बेटा आपका कोलेजन का लेयर बहुत ज्यादा मिलेगा. Excessive collagen and the fibrous connective tissue will be there. Are you getting the point? Okay, so this is our another fascia. Okay, so this is also the fascia. अब प्रॉब्लम हो गई, सर दो दो fascia कैसे हैं? Yes, this is having the more amount of the collagen and fibrous connective tissue. Getting the point? So this is also the fascia. तो अब जरूरत पड़ती है दोनों में डिफरेंशिएशन करने की. जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल. सो दिस इज आवर सुपरफिशियल फेशिया. सॉरी, जो नीचे होता है, अंदर होता है, दैट इज नोन एज डीप फेशिया. सो एवरीवेयर इन आवर बॉडी, आइदर द स्कल, ब्रेन, आवर अपर लिम्ब, थोरेक्स, एब्डोमेन, थाई, कहीं पर भी आप कटिंग करेंगे आपको फेशिया के दो लेयर मिलेंगे. सबसे पहले स्किन, फिर उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर उसके बाद आपको मिलेगा डीप फेशिया, और फिर उसके बाद आप देखेंगे सबसे अंदर में आपको मिलेगा बोन. फील कीजिए, सबसे अंदर में टाइट सी चीज मिल रही है, दैट इज आवर बोन. Getting the point? So yes sir, here is the bone. So what I want to tell you, see here, this is bone, and bones are giving attachment to the muscles. Can you see? Again this our animated 3D model. Yes sir, बहुत सारे मसल्स हैं, आप ये मसल्स को हटाते जाइए. यस, व्हेन वी आर रिमूविंग दिस ऑल द मसल्स, हम डाइसेक्शन करते चले जा रहे हैं, तो अंदर में, सबसे अंदर में आपको हड्डी दिखाई दे रही है. बेटा ऑस्टियोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होता है, इस ऑस्टियोलॉजी में हम एक एक बोन की स्टडी करते हैं. सो जस्ट लुक हियर, दिस इज अवर बोन ऑन द इनर मोस्ट साइड. ये बोन जो है फनी बोन कहलाती है, ह्यूमरस कहलाती है. क्यों ये ह्यूमरस कहलाती है, जब ग्रॉस एनाटॉमी चलेगी तब मैं बताऊंगा. यस, ये ह्यूमर करने के काम में आती थी. इसमें एक पार्ट होता है, दैट इज अवर मीडियल एपिकॉन्डाइल. कैन यू सी दिस बोनी प्रोमिनेंस? मीडियल एपिकॉन्डाइल. इसके पीछे में अगर हम बार बार टच करें, हिट करें, तो यहाँ पर हमें
टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, करंट सा एहसास होता है। आपको पता होगा, आप कभी दरवाजे से जा रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं, अचानक हाथ हिट होता है और पूरा करंट सा सेंसेशन आपको हाथ में फील होता है और बहुत जोर से दर्द होता है। ओके, तो पहले जमाने में मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे हिट करके लोग मजाक किया करते थे, ह्यूमर प्रोड्यूस किया करते थे। दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस वन, दिस बोन which was used for the humor creation, that's why that bone is known as the humorous or funny bone. तो ये आपका एमसीक्यू आता है, which bone in our body is known as funny bone? Answer is humor bone, humorous. So what I want to tell you, सबसे अंदर में बेटा आपको बोन मिलेगा, that is humorous. Now try to understand here, the bones are giving attachment to the muscles. So now try to learn. Yes, the bones are giving attachment to the muscles, और muscles को हम brown color से draw करते हैं. So here I am drawing the muscle. Okay, and these color codings are important. This all the color codings are important. So just see here beta, you have to fill the muscle with the brown color. तो अब कोई भी चीज आपको एनाटॉमी की बुक में ब्राउन दिखी तो वो डेफिनेटली डैम श्योर वो सिर्फ और सिर्फ मसल हो सकती है, मसल के अलावा और कुछ नहीं हो सकती. So the bones are having the attachment of the muscle, and see here, these are different muscles. Yes, various muscles are located, various muscles are located. So just one diagrammatic presentation. ओके, मैं आपको बुक की कई सारी चीजों को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी की तरफ भी बढ़ेंगे. सो दीज आर द अवर डिफरेंट मसल्स. गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, नाउ सी हियर. ओके सर, बोन इज हियर एंड दीज आर आवर मसल. Getting the point? Fine. Now try to understand, these bones are having the attachment, yes, with the deep fascia. What I'm telling you, see here, deep fascia जो है वो बोन के साथ अटैच हो गई. तो इस मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया का हम कुछ नाम देते हैं, बिकॉज इट इज इन बिटवीन द मसल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटर. क्योंकि ये दो के बीच में है, दैट्स व्हाई यूजिंग द टर्म इंटर. मसल के बीच में है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म मस्कुलर. ये पार्टीशन है बेटा, इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं? सेप्टा. इंटर मीन्स इन बिटवीन, मस्कुलर मीन्स मसल, सेप्टा मीन्स पार्टीशन. तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया वो दो मसल के बीच में पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंटरमस्कुलर सेप्टा. गॉट द पॉइंट? जैसे कि अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंटर बीच में, नेशनल कंट्रीज के मैच. गेटिंग द पॉइंट? इंटरनेशनल मैच. In the same way, so don't forget this difficult terminology, intermuscular septa. Yes, now this intermuscular septa is dividing the arm into the front side and the back side. Suppose ये front side है जिसको हम कहते हैं anterior, suppose ये back side है जिसको हम कहते हैं posterior. Getting the point? So it is dividing the arm into the two compartment, anterior compartment and here is the posterior compartment. Getting the point? So this is the posterior compartment. तो आर्म में दो खंड बने हुए, दो खाने बने हुए, एंट्री कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. गेटिंग द पॉइंट बेटा? नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट each compartment is having its own artery, vein, nerve. पहले ये कंपार्टमेंट को समझिए. सोचो, अगर भगवान हमारी बॉडी बना देता और यहीं पर हार्ट रख देता, यहां पर लीवर रख देता, तो क्या होता? यस, ये हार्ट गिर के पैर में आ जाता, जब हम सोते तो ये लीवर हाथ में चला जाता. आई एम मेकिंग जोक. यस, ब्रेन जो है ब्रेन में है, यस, क्रेनियल कैविटी में है, वो खसक करके हमारे पैर में गिर जाता. तो गॉड ने क्या किया? गॉड ने बहुत खूबसूरती के साथ हमारी बॉडी को बनाया है. उन्होंने क्या किया? कंपार्टमेंट बना दिए. ओके, सो दैट ईच एंड एवरी पार्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स ओन पार्ट. ओके, यहां पर बेटा डायफ्राम है, गले में भी डायफ्राम होता है. तो थोरेक्स लंग जो है हमेशा हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर है. इसी तरीके से आर्म में बहुत सारे मसल, भगवान ने इसमें
कंपार्टमेंट बना दिया, तो हर मसल अपने एक पर्टिकुलर पार्ट में है, वहां से खसक के पीछे नहीं चली जाती। गेटिंग द पॉइंट? सो देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंपार्टमेंट। अब हर कंपार्टमेंट की चीजों को जिंदा रहना है। अगर हर कंपार्टमेंट की चीजों को जिंदा रहना है तो वहां पर एक जिंदा रखने के लिए आपको वेन देना पड़ेगा जो वहां से ब्लड को दूर ले जाएगा। सो देयर विल बी द वेन। हर कंपार्टमेंट को ब्लड सप्लाई करनी है, इसलिए वहां पर एक आर्टरी देनी पड़ेगी। सी हियर आई एम मेकिंग द वेन विद द ब्लू कलर, आर्टरी विद द रेड। दिस ऑल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। पूरी एनाटॉमी में अगर ब्लू कलर का कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख गया, दैट विल बी योर वेन। रेड कलर की अगर कोई आपको स्ट्रक्चर दिख गई, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, डेफिनेटली दैट इज द आर्टरी। तो कलर कोडिंग एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट है। गेटिंग द पॉइंट? यस। और इसके साथ में हर मसल को जिंदा रहने के लिए नर्व चाहिए, जिसको मैंने येलो कलर से बनाया, ल्यूमेन नहीं बनाया। हर छोटी छोटी बात का मतलब है एनाटॉमी में। और अगर एनाटॉमी स्ट्रांग रहेगी तो ऑटोमेटिक बेटा आपका सर्जरी स्ट्रांग हो जाएगा। और यही चीजें सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स, पीडियाट्रिक्स, स्किन एनेस्थेसिया, रेडियोसाइकी, सभी में यही चीजें फॉलो होती है, क्योंकि एनाटॉमी सभी का एबीसीडी है। हर सब्जेक्ट आपका एनाटॉमी से स्टार्ट होगा। अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आई की एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। ओके, सो इफ यू वांट टू बिकम द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेफिनेटली डैम श्योर यू हैव टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द आई। कैन यू सी? यस, ऑप्थेल्मोलॉजी बेटा सिर्फ इसको पढ़ेंगे आप, इसकी सर्जरीज पढ़ेंगे, इसकी बीमारियां पढ़ेंगे, इसकी डिसीज पढ़ेंगे। लेकिन क्या करें, सबसे पहले आपको आई बॉल का पूरा एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, डाइसेक्शन करना पड़ेगा, बाहर निकाल करके एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, तभी आप उसकी बीमारियों को समझेंगे। और हम डिपार्टमेंट में बेटा यही काम करते हैं। आप सभी अपने डाइसेक्शन टेबल के चारों ओर जमा होंगे। गेटिंग द पॉइंट? आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, डाइसेक्शन हमारे कनिंघम के पेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको डाइसेक्शन करना पड़ेगा। एक एक लेयर साल भर में पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर जानी पड़ेंगी। यस, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कोरोना के कारण बेटा पिछला सेशन, आपका जो सेशन है अगस्त सितंबर से चालू हो जाना था, वो अफेक्टेड हो गया है। 4-5 महीने आपके जा चुके हैं। तो डेफिनेटली हर कॉलेज में सेशन बहुत तेजी से होगा। इवन एम्स, दिस ऑल द कॉलेजेस, अपर लिम तक की पढ़ाई हो चुकी है। वो कॉलेजेस पहले खुले थे आप लोगों की कॉलेजेस से पहले, लेकिन वहां भी स्पीड बहुत ज्यादा है, आपके कॉलेजेस में भी स्पीड ज्यादा होगी, ताकि आप प्रॉपर सही टाइम पे एग्जाम दे पाए। गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू। इसलिए आपको स्पीड बनाते हुए भी चलना है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आपको बेटा प्रॉपर हर चीज को डाइसेक्ट करना है, ताकि आप चीजों को प्रॉपर लर्न कर सकें। सो राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, सी हियर, हर कंपार्टमेंट की खुद की एक आर्टरी होती है, खुद का एक वेन होता है, खुद का एक नर्व होता है। एंड नाउ दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर कवर्ड विद द अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की चीजों को भी तो जिंदा रखना है, इसलिए यहां पर भी एक वेन दीजिए, एक आर्टरी दीजिए और एक नर्व दीजिए, और इनको संभाल के रखने के लिए आपको मॉडिफिकेशन ऑफ फेशिया देना पड़ेगा। भगवान ने इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग दे दी, एक गिफ्ट पैकेट दे दिया। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, every compartment is having its own, yes, vein, yes, intermuscular labeling I am doing here. Yes, every structure is having its own vein, its own artery, its own nerve. तो बेटा एक ट्रिक मैंने आपको फिर से बता दी, द ट्रिक इज VAN, वैन। अब पूरी एनाटॉमी में यही चीज आपको फॉलो करनी है। हर पार्ट में, हमारे बॉडी के हर पार्ट में खुद की एक वेन होगी, खुद का एक आर्टरी होगा और खुद का एक नर्व होगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर आवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, व्हाट, vein, artery and the nerve. This all the structures are known as, try to understand the other very important basic concept, this all the structure known as neuro, yes, vascular, yes, bundle. So this all the structures are विदिन वन सिंगल बंडल, एक गिफ्ट पैक के अंदर है, इसलिए बंडल कह रहे हैं। न्यूरो क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इसमें न्यूरॉन है, इसमें नर्व है।
वेस्कुलर क्यों कह रहे हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेस्कुलर का मतलब है वेसल, और वेसल का मतलब होता है बेटा वेन प्लस आर्टरी। सो वेसल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेसल? वेसल मींस वेन प्लस आर्टरी। सो दिस इज योर न्यूरोवेस्कुलर बंडल। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस ऑल द टर्मिनोलॉजी। हर कंपार्टमेंट के पास, हमारे बॉडी के हर पार्ट के पास, चाहे वो फोर आर्म हो, चाहे आर्म हो, चाहे थोरेक्स हो, चाहे एब्डोमेन हो, चाहे पैर हो, थाई हो, फुट हो, हर कंपार्टमेंट का खुद का वेन होता है, खुद की आर्टरी होती है, खुद का नर्व होता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। I want to tell you one more point, that see here, one rule I am going to tell you, that is our Hilton's law. We are going to deal with the one very important law, that is the our Hilton law. So try to understand. ये एक ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है जो पूरे एनाटॉमी में आपको रन करता हुआ मिलेगा। मैं इसके पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज दिस इज अवर इंडिया कंट्री। यस, suppose this is our India country. Yes, just one diagrammatic presentation. एक कॉन्सेप्ट हम लर्न करने जा रहे हैं। यस, ओके सर। सो यू नो, गंगा नदी किधर बहती है सर? नॉर्थ रीजन में बहती है। गेटिंग द पॉइंट? सर साउथ में कौन सी नदी बहती है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी बहती है। तो आपको याद रखना है, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। क्योंकि नॉर्थ में गंगा रिवर बह रही है, सो रिमेंबर दिस गंगा विल सप्लाई ओनली द नॉर्थ रीजन। ऐसा कभी नहीं होगा कि गंगा जो है वो हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई को सप्लाई कर रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड इन द सेम वे, here at the south belt there is the river Krishna, Kaveri, Godavari. तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी कभी भी उत्तर प्रदेश, देहरादून, नैनीताल को सप्लाई करने के लिए नहीं जाएगा। सो सिंपल। सो सर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस रूल विथ आवर एनाटॉमी? फर्स्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड this law. Yes, what I want to tell you, Hilton law. Okay, I told you that this is our Ganga, which is supplying the north region. Here is our, yes, Krishna, Kaveri, Godavari, which is supplying the south region. What I want to tell you, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। सो गंगा रिवर इज सप्लाइंग द अवर नॉर्थ बेल्ट। फाइन सर, गेटिंग द पॉइंट? while the south region is supplying the, yes, south region is supplied by the our Krishna, Kaveri, Godavari. Okay, getting the point? So what I want to tell you, yes, ये अब हमारा एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बन रहा है। जो नदी जहां रहती है, ओके सर, जहां बहती है, ओके सर, उस एरिया को सप्लाई करती है। फाइन सर, नाउ अप्लाई द सेम रूल। यस, वी विल सी बेटा, इन आवर आर्म डिफरेंट नर्व्स आर देयर। सो व्हाट विल हैपन, यहां आर्म में कई सारी मसल्स हम पढ़ेंगे, आगे जब हम चलेंगे तब मैं बताऊंगा। एक मसल आप जानते हैं, बाइसेप्स। जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक नर्व होती है जो मसल को सप्लाई करेगी, इसलिए मस्कुलो, लेकिन फिर वो चमड़ी को भी सप्लाई करती है, इसलिए क्यूटेनियस। तो इस नर्व का क्या नाम है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। क्योंकि इस एंटीरियर कंपार्टमेंट में मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है, इसलिए वही नर्व इस मसल को सप्लाई करेगी, इस मसल को पीछे की नर्व नहीं सप्लाई करेगी। इन द सेम वे जब हम फोर आर्म देखेंगे तो यहां पर मीडियन नर्व, अल्नर नर्व मिलेंगे।
तो यहाँ जो भी मसल रहेगा उसको मीडियन और अल्नर सप्लाई करेगा, उसको कभी भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व नहीं सप्लाई करेगा। मींस सी हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू। यस, जब हम अपर लिम्ब पढ़ेंगे तो बहुत सारे नर्व के नेटवर्क हमें यहां पर दिखेंगे। द पर्टिकुलर वन नर्व विल बी इंपॉर्टेंट देयर। यस, we will see the main nerve of this arm is our musculocutaneous nerve। इसका हम डाइसेक्शन करेंगे, गेटिंग द पॉइंट, इसका प्रॉपर डाइसेक्शन करेंगे और इस नर्व को खोजेंगे। ये नर्व जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म की मेन नर्व है। तो यहां पर जितने भी मसल आएंगे, 3 मसल होते हैं, सबकी नर्व सप्लाई यही होगी, कोई दूसरा नर्व नहीं होगा। So in this way we will make easier, okay, and also we will create many tricks and the mnemonics so that you will get very easy to all the parts of the anatomy, okay। And yes, in our upcoming classes we will see the dissection instrument। yes sir, now we are having little bit interest। ये मैंने आपको क्यों बताया बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूरी एनाटॉमी में बार बार आपको एक चीज पढ़नी पड़ती है। यस, रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फोसा, फ्लोर, दिस ऑल द थिंग्स। तो ऊपर में कौन सी चीजें दिख रही है, ऊपर में आपको दिख रहा है बेटा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। याद रखेंगे कि ये चीजें हमेशा बनाएंगी रूफ। अब हम पूरे एनाटॉमी में पढ़ेंगे। यस, ऑलवेज इन आवर एनाटॉमी वी विल रीड व्हाट आर द स्ट्रक्चर मेकिंग रूफ ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल, क्यूबाइटल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा, फीमोरल ट्रायंगल, एब्डोमेन, ब्रेन। ये टर्म आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रूफ किससे बनता है। यहां पर हम थंब वाले पार्ट में पढ़ेंगे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे बेटा। ये ह्यूमन एनाटॉमी में है इसलिए एनाटॉमिकल। यहां पर कई सारे नशे की चीजों को रख करके, रब करके स्नफिंग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्नफ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए बॉक्स। आप थंब को एक्सटेंड कीजिए, यहां पर आपको एक आपको डब्बे जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। सब करो बेटा, सब करो, अपने थंब को एक्सटेंड करो, थंब के बेस में एक डिप्रेशन मिल रहा है, दिस इज स्नफ बॉक्स, क्योंकि यहां पर नशे की चीजों को रख करके स्नफिंग की जाती थी, इसलिए इसका नाम है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्यों बता रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है। और ये पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नीट, नेक्स्ट एग्जाम, सभी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नाउ यू विल नॉट फॉरगेट द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो बेटा वहां पर भी आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब आपके पास कॉन्सेप्ट है, हमारे बॉडी में हर जगह ऊपर की तरफ क्या मिलता है। यस, यू विल सी देयर इज द स्किन, देयर इज द सुपरफिशियल फेशिया, देयर इज द डीप फेशिया। ऑटोमेटिक आपको याद हो गया, रूफ ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एनाटॉमी। एक बार में ही हमने देख लिया रूफ ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ नेक। नेक में पढ़ेंगे कैरोटिड ट्रायंगल, डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। यस, वी विल रीड द क्यूबाइटल फोसा। अभी ये सब नाम आपके लिए नए हैं, लेकिन हर जगह आपको पढ़ना है। सबका रूफ एक बार में खत्म कर दिया हमने, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, रूफ ऑफ यस फीमोरल ट्रायंगल, ये भी हमने खत्म कर दिया। रूफ ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। इसी तरीके से कोई भी जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसका फ्लोर पढ़ेंगे। फ्लोर का मतलब क्या होता है, यस डेप्थ स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो डेप्थ में है। तो डेप्थ में क्या चीजें आपको दिख रही है, बोन दिख रहा है, मसल दिख रहे हैं। सो रिमेंबर द फ्लोर विल बी फॉर्म बाय योर बोन एंड मसल्स। हमेशा जब भी हम कोई फोसा पढ़ेंगे तो हम उसको बाउंड्री देखते हैं, उसकी क्या क्या बाउंड्रीज बनती है। तो बाउंड्री कौन बनाएगा, मसल्स ही तो बाउंड्री बनाएंगे। वी विल सी मसल्स विल क्रिएट द बाउंड्री। और लास्ट में फिर हमको देखना पड़ता है एनाटॉमी में कि उस पर्टिकुलर फोसा के कंटेंट क्या है। तो याद रखिए कि किसी भी फोसा के गड्ढे में आपको क्या मिल रहा है, यू कैन सी द वेन आर्टरी नर्व। तो हमेशा आपको याद रखना एक जनरल आइडिया, कंटेंट जो रहेंगे वो हमारे VAN करके स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। गेटिंग द पॉइंट बेटा। सो दिस ऑल आर द योर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब यहां से आपका डाइसेक्शन का एक कॉमन सेंस बन गया। इन अपकमिंग क्लासेस आई विल टेल यू द वेरियस इंस्ट्रूमेंट, आपको क्या क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। हम एक एक करके चीजों को देखेंगे, डाइसेक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे आपको मार्किंग करनी है, और क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। दिस इज द योर वीपन। इससे बेटा आप
डाइसेक्शन करते हैं और कैडेवर आपको सिखाता हुआ चलता है। सो यस, थैंक यू वेरी मच to all of you. Now I am going to give you the different links from where you can get the free videos so that you can start your anatomy. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल टाइम से ही हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए थे, नीट के साथ जुड़े हुए थे। हमें बहुत खुशी होती है कि मेरठ मेडिकल कॉलेज से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से ही, स्कूल टाइम से। अहमदाबाद से बच्चे जुड़े हुए हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे और हमारे वीडियोस देख रहे थे। ओके तो जब उन्होंने हमें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सर हम तो पहले से आपसे जुड़े हुए, अब एमबीबीएस की पढ़ाई कर, उन्होंने हमारे कोर्सेज भी परचेस कर लिए। ओके सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाई द कोर्सेस, लेकिन बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़े जरूर रहें, क्योंकि बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें आपको मिलती रहेंगी। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि हाँ कोर्स परचेस करना चाहिए, लाइव सेशन के साथ जुड़ना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि बेटा जब तक स्टूडेंट नहीं है टीचर नहीं है, जब तक टीचर नहीं है स्टूडेंट नहीं है, और जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में रेजोनेंस होता है तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलता है, स्टूडेंट को भी मिलता है और टीचर को भी मिलता है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट वन वेरी हेल्दी प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक द प्रीवियस ईयर। पिछले साल भी पूरे इंडिया से बच्चे आए, उन्होंने हमसे बढ़िया एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ, बहुत बढ़िया सा हम लोगों ने ग्रुप बनाया और प्रॉपर स्टडी चालू हो गई। और मैं सोचूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारा अब जो ग्रुप है वो साल के फर्स्ट ईयर से ही बन जाए। यस, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट होकर के सर्व कर रहे हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन दिया था सिंपल मेडिकल एकेडमी को, कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड क्लासेस को। ये सारे बच्चे अभी बहुत अच्छे अच्छे जगह में हैं, जैसे कि यस डॉक्टर मोहम्मद शकील एमडी मेडिसिन, अब वो डीएम एंडोक्राइनोलॉजी कर रहे हैं सीएमसी वेल्लोर से। यस, ये है हमारे पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज के, रायपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मैनाक बरधान, जो कि इंटरनेशनली वो एक बहुत बढ़िया ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बहुत बढ़िया वो लेवल पाए, चाइना गए, रशिया गए और वहां पर उन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल प्रेजेंट किए। अभी वो निमहैंस बैंगलोर में न्यूरोलॉजी की डिग्री ले रहे हैं। एवरी स्टूडेंट दे आर गेटिंग फेमस। ओके, रोहतक हरियाणा की तरफ Dr. Rahul Singla. So many students are there. Okay, so you will be also the part of us and you will get connected. Okay, so we will meet, we will talk more and more the things. Here I'm giving you the few numbers from where you can get the different points. पहली चीज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि बेटा आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें और ऐप में आप उस लिंक को ज्वाइन करें। यस, यू हैव टू ज्वाइन द डिफरेंट लिंक्स और वहां पर आपको फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारा एमबीबीएस 2021 बैच बन चुका है, काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिए। एंड देयर वी विल सेंड द डिफरेंट लिंक्स एंड फॉर द यस वी आर इन विल to start the our anatomy classes as soon as possible, so you can stay connected with our telegram groups, insta group, facebook group, youtube channel. Okay, and I am sending you the different numbers through the telegram group. Yes, here is our telegram group. I am sending you the number. You can connect at this number for any kind of the query. और बेटा जनरल एनाटमी की क्लासेस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका फी जो है 1000 रुपीज है, लेकिन फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ 500 रुपीज में एनरोल हो जाएगा। सो यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर मिस्टर कृष्णा जी, ही हैंडल्स ऑल द रजिस्ट्रेशन। और पढ़ाई लिखाई में अगर कोई डाउट है बेटा, पढ़ाई से कोई बात करनी, तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं फोन ना उठा पाऊं, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं फोन रिसीव करूंगा और आपको कॉल बैक करूंगा, और जो भी पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम है हम वो शेयर करेंगे। ओके, दिस इज मिस्टर कृष्णा जी नंबर। ओके बेटा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें आपको पूछनी है वो कृष्णा जी से पूछिएगा, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट देना चाहता हूँ, मटेरियल रेडी करना चाहता हूँ, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को इंटीग्रेट करके हम आपके लिए सर्व करना चाहते हैं। यस, मैं बेटा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी टीच करता हूँ, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे एनाटॉमी से, और अगर आपको फिजियो और बायोकेम में दिक्कत आए तो हम उसकी भी क्लासेस करेंगे। एंड दिस ऑल आर इन रिकॉर्डेड फॉर्म एट आवर ऐप ऑलरेडी, लेकिन इस सेशन के नए वीडियो आपकी क्लासेस के साथ हम बनाते हुए चलेंगे। एंड ऑल्सो देयर आर द न्यू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू।
Yes, here is our Telegram channel. We are going to start our all the classes. बेटा क्लासेस तो ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, आज आपकी पहली क्लास थी, लेकिन पूरे इंडिया के बच्चों को हम जोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि वहां तक खबर पहुंचे। तो बेटा 14 Feb इज द संडे, ओके। तो 14 Feb को हम फिर से ये पूरे बैचेस बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज जो भी बच्चा रजिस्टर करेगा तो है कॉस्ट आपका 1000 रुपीज का, लेकिन फर्स्ट 20 स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ में ये कोर्स एलिजिबल हो जाएगा। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा प्लेटफॉर्म प्रॉपर रन करे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ही हम और आप मिल पाते हैं। और हमारे साथ कई सारे स्टाफ हैं, कई सारे सिस्टम हैं, वो सारे लोग इसी के थ्रू जुड़े हुए हैं और इसी के थ्रू प्रॉपर सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसलिए हमें इस सिस्टम को जिंदा रखना जरूरी है। On this beautiful platform of the conceptual brainstorming integrated classes, we will meet together and we will do more and more thing. आप अपने कॉलेज से बड़ा सा ग्रुप बनाइए, आपको और बेटर डिस्काउंट मिलेगा। कृष्णा जी से आप बात करेंगे, ओके। एंड एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम विद द स्टडी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। अब हम लाइव डाउट डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, चाहे कॉलेज से रिलेटेड, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, चाहे न्यू इन्वायरमेंट में कैसे अडॉप्ट करना है, टीचर्स से कैसे बिहेव करना है, सीनियर्स से कैसे बिहेव करना है, कुछ भी चीज, एनी काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम, हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। सो स्टार्ट द लाइव डाउट डिस्कशन बेटा। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टार्ट द लाइव डाउट डिस्कशन।